جی بہت بہت شکریہ ناظرین. سب سے پہلے میں تزئین ادب آرا بہار کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، اور اس کے جو ایڈمن ہیں یا جو مطلب جس کو کہا جائے کہ جو سب کچھ ہے ایک طرح سے دیکھا جائے تو امتیاز احمد دانش صاحب، میں ان کی بے حد شکر گزار ہوں کہ وہ بہت ہی خاموشی کے ساتھ اور بہت ہی خلوص کے ساتھ اردو ادب کی یہ خدمت انجام دے رہے ہیں، اور ایک بعد دیگرے لوگوں کو جوڑنے کا بہترین کام کر رہے ہیں. یقین مانیے کہ دلوں کو جوڑنا بہت ہی افضل کام ہے، اور دلوں کو جوڑنا، لوگوں کو جوڑنے کا جو یہ کام وہ کر رہے ہیں اس کی اپنی اہمیت ہے. تو میں سب سے پہلے انہیں اپنی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے جو مجھے بلایا ہے اس اہم پروگرام میں. تقریباً 100 ایپیسوڈ پورے ہوئے اس کے، انہوں نے جیسا بتایا تھا، اور اس 100 ایپیسوڈ کے پورے ہونے کی خوشی میں اور اس کے ساتھ مجھے جوڑا انہوں نے، ان سب کے لیے یقیناً میں ان کی ممنون ہوں، اور انہیں بہت بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں اپنی جانب سے، اور دعا کرتی ہوں کہ تزئین ادب اسی طرح سے ادب کی وقار میں اضافہ کرتا رہے، اضافے کا سبب بنے. حاضرین اکرام، آج آپ سب مجھے سن رہے ہیں، بہت ساری. نصر اللہ نصر صاحب، آپ کا بے حد شکریہ. امتیاز صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے استقبال کہا ہے مجھے، بہت بہت شکریہ. اب آواز بہت دھیمی آ رہی ہے غالباً، ایک منٹ میں ٹھیک کرتی ہوں اس کو اور آگے کروں. ہلو جی، ایک منٹ. اب میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ جی مجھے تو لگ رہا ہے کہ بہت مطلب کہ اب آپ سن پائیں گے. جی بہت شکریہ. شرافت انصاری صاحب، بہت شکریہ. ہاں، سب سے پہلے میں ان 4 مصروں سے آپ کا استقبال کرنا چاہوں گی، آپ سب کا. اور وہ اردو کے حوالے سے جو 4 مصرے ہیں میرے، کہ کوئی پاؤں میں گھنگرو باندھتا ہے، کوئی پاؤں میں گھنگرو باندھتا ہے، کوئی باتوں میں خوشبو باندھتا ہے، وہی کرتا ہے آخر حکمرانی جو بس لفظوں میں اردو باندھتا ہے. اس کے بعد اردو کے حوالے سے ہی 4 مصرے اور عنایت کرتی ہوں اور حاضر کرتی ہوں کہ محبوب کی آنکھوں کا ہے کاجل اردو، محبوب کی آنکھوں کا ہے کاجل اردو، باران محبت میں ہے جل تھل اردو، تہذیب کی خوشبو کو بکھیرے ہر سو، یہ ماں کی طرح پیار کا آنچل اردو. ہم سب اسی اردو کے خادم ہیں، اور اسی حوالے سے آج اس محفل میں ہم سب ایک جگہ جمع ہوئے ہیں. ناظرین کرام، آپ سب کا بے حد شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں. آپ سب کا بے حد استقبال ہے. اور غزل کے چند اشعار کے ساتھ میں اپنی بات کی ابتدا کروں گی. اور یہ سنیے کہ یہ غزل کا مطلب پیش خدمت ہے کہ خیال قرب ہے اس کا گمان کی حد تک، خیال قرب ہے اس کا گمان کی حد تک، مکان سے دور ہے وہ لا مکان کی حد تک. اور شعر ہے کہ حیات دام مسلسل ہے، موت آزادی، حیات دام مسلسل ہے، موت آزادی، میری زمیں سے تیرے آسمان کی حد تک، میری زمیں سے تیرے آسمان کی حد تک. نصر اللہ نصر صاحب اور ذاکر صاحب، شرافت صاحب، وقار، سبھی لوگوں کا بہت بہت شکریہ. عظیم انصاری صاحب، سیف الاسلام صاحب. شعر حاضر کرتی ہوں کہ میری زمیں سے تیرے آسمان کی حد تک. اور دیکھیے گا کہ شعر کے وہ ایک بات کہ ناآشنا ہے لب جس سے، وہ ایک بات کہ ناآشنا ہے لب جس سے، خدا کرے کہ نہ آئے بیان کی حد تک، خدا کرے کہ نہ آئے بیان کی حد تک. اور مکان سے اس کے بہت دور جا کے سوچیں گے،
मकां से उसके बहुत दूर जाके सोचेंगे, खुलूस उसका था शायद ज़बान की हद तक, खुलूस उसका था शायद ज़बान की हद तक। मुजाहिद साहब, आबिद साहब, शराफत अंसारी, नदीम अख्तर साहब, सबों का बेहद शुक्रिया। और अगला शेर देखें, हम सब इसमें अपना दर्द भी महसूस करेंगे कि मेरे हबीब ने समझा नहीं मुझे वरना, मेरे हबीब ने समझा नहीं मुझे वरना, अना का तीर ना आता कमान की हद तक, अना का तीर ना आता कमान की हद तक। और सलीब वक्त पे आखिर हिना चढ़ाई गई, सलीब वक्त पे आखिर हिना चढ़ाई गई, ये हक नुमाई हुई उसकी जान की हद तक, ये हक नुमाई हुई उसकी जान की हद तक। और दूसरी गज़ल का मतला, रूमानी मतला एक पेशे खिदमत है जो गज़ल का ही मतला हो सकता है। देखें कि कल रात उससे ख्वाब में यूं सामना हुआ, कल रात उससे ख्वाब में यूं सामना हुआ, नजरें मिली तो मुझसे मेरा दिल जुदा हुआ, नजरें मिली तो मुझसे मेरा दिल जुदा हुआ। और शेर देखें कि एक पल भी तेरी याद से गाफिल नहीं थे हम, एक पल भी तेरी याद से गाफिल नहीं थे हम, कहने को दिल तो बारहा तुझसे जुदा हुआ, कहने को दिल तो बारहा तुझसे जुदा हुआ। और पहले तो ठेस लगती न थी एतमाद को, पहले तो ठेस लगती न थी एतमाद को, हर चंद बार बार वो मुझसे खफा हुआ, हर चंद बार बार वो मुझसे खफा हुआ। तमामी नाजरीन का शुक्रिया, यूसुफ फलाही साहब, आबिद साहब, शाहिद हुसैन साहब, वकार अहमद जो मेरे शागिर्द हैं, फयाज़ अजीम, शराफत अंसारी, आप सबों का बेहद शुक्रिया। बस आपकी मोहब्बतें मिलती रहें, आप इसी तरह से सुनते रहें, मुझे थोड़ी देर और गवारा कर लें। शेर है कि पहले तो ठेस लगती न थी एतमाद को, हर चंद बार बार वो मुझसे खफा हुआ। और शेर है कि हम मुफलिसी के बोझ तले दब के रह गए, हम मुफलिसी के बोझ तले दब के रह गए, अरमान जो भी दिल में था आखिर फना हुआ, दुश्मन की दुश्मनी तो आया सब पे थी मगर, दुश्मन की दुश्मनी तो आया सब पे थी मगर, एक तीर दोस्ती का है दिल में लगा हुआ, एक तीर दोस्ती का है दिल में लगा हुआ। और इस शेर पे इस शेर का मक्ता, गज़ल का मक्ता देखें कि खूने हिना जनाब के सर पर ना आएगा, खूने हिना जनाब के सर पर ना आएगा, कहिए कि हाथ सुर्ख बरंगे हिना हुआ, कहिए कि हाथ सुर्ख बरंगे हिना हुआ। और यहाँ पे आप सब मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बेहद शुक्रिया फर्रुख साहब, फयाज साहब, अजहर साहब, और ख़ुद जो इसके एडमिन हैं, जो मेज़बान हमारे हैं, इम्तियाज़ अहमद दानिश साहब, जो शुरू से आखिर तक लगे हुए हैं, साथ में बने हुए हैं, उनका भी शुक्रिया। और यहाँ पे तीसरी गज़ल का जो मतला है वो मैं हाजिर करती हूँ कि सूखे पत्ते का है ठिकाना क्या, सूखे पत्ते का है ठिकाना क्या, और कोयल का आशियाना क्या, और कोयल का आशियाना क्या, हर घड़ी ताक ही में रहता है, हर घड़ी ताक ही में रहता है, मेरा दुश्मन है ये ज़माना क्या, मेरा दुश्मन है ये ज़माना क्या। और शेर देखें कि दिल को हासिल नहीं सुकून दम भर, दिल को हासिल नहीं सुकून दम भर, दर्द उठने लगा पुराना क्या, दर्द उठने लगा पुराना क्या, तिनके बिखरे हुए हैं राहों में, तिनके
बिखरे हुए हैं राहों में, लुट गया मेरा आशियाना क्या, लुट गया मेरा आशियाना क्या। और गज़ल का ये शेर भी देखें कि मेरी बर्बादियों का चर्चा है, मेरी बर्बादियों का चर्चा है, फिर मेरी ज़ात है निशाना क्या, फिर मेरी ज़ात है निशाना क्या। और आखिरी, ये गज़ल तवील है, मैं गज़ल का मक्ता हाजिर करती हूँ कि क्यों नहीं दिल में मुझको रख लेते, क्यों नहीं दिल में मुझको रख लेते, साबिरा साबिरा बुलाना क्या, साबिरा साबिरा बुलाना क्या। गज़लें तो चलती रहती हैं, नज़में भी हैं, लेकिन एक और छोटी सी गज़ल मैं आपके गोशगुजार करना चाहूँगी, आपके सामने हाजिर करती हूँ कि जब है उल्फत का सिलसिला बाकी, मतलब है कि जब है उल्फत का सिलसिला बाकी, तेरा मेरा है राबता बाकी, जब है उल्फत का सिलसिला बाकी, तेरा मेरा है राबता बाकी। डोर सांसों की अपने हाथों में, डोर सांसों की अपने हाथों में, साथ जीने का फैसला बाकी, साथ जीने का फैसला बाकी। शुक्रिया तमामी हजरात का जो लोग भी जुड़े हुए। नसरुल्लाह नसर साहब, आपकी मोहब्बतों का, इनायतों का शुक्रिया। अजहर रसूल साहब शुक्रिया। और शेर देखें कि ये शेर मुझे बहुत अजीज़ है। देखें कि तुम भी यादों के शहर में रहना, ये मुझे बहुत अजीज़ है ये शेर। तुम भी यादों के शहर में रहना, है अभी मेरा हाफिज़ा बाकी, है अभी मेरा हाफिज़ा बाकी। और गज़ल का आखिरी शेर है कि गम का तूफ़ान क्या बिगाड़ेगा, गम का तूफ़ान क्या बिगाड़ेगा, दिल में जब तक है हौसला बाकी, दिल में जब तक है हौसला बाकी। और मक्ता हाजिर करती हूँ कि छोड़ सकती नहीं कभी तुझको, छोड़ सकती नहीं कभी तुझको, तेरी खातिर है ये हिना बाकी, तेरी खातिर है ये हिना बाकी। और एक गज़ल का मतलब पेश खिदमत है कि आईने को वो रूबरू करके, आईने को वो रूबरू करके, खो गए खुद से गुफ्तगू करके, खो गए खुद से गुफ्तगू करके। और शेर देखें कि वो कहाँ और उसकी याद कहाँ, वो कहाँ और उसकी याद कहाँ, फ़ायदा क्या है जुस्तजू करके, फ़ायदा क्या है जुस्तजू करके। और शेर है कि एक तस्कीन के लिए आखिर, एक तस्कीन के लिए आखिर, छोड़ा तुमने बदन लहू करके, छोड़ा तुमने बदन लहू करके। और ये शेर भी देखें कि वो तो अपना ही कद घटा बैठा, वो तो अपना ही कद घटा बैठा, मेरा शिकवा यूं चार सू करके, मेरा शिकवा यूं चार सू करके, लुट गया यूं तेरा खजीने दिल, लुट गया यूं तेरा खजीने दिल, क्या मिला तरके आरज़ू करके, क्या मिला तरके आरज़ू करके। और एक दूसरी गज़ल का मतलब हाजिर करती हूँ। उम्मीद है आप सब सुन भी रहे हैं मुझे, और मैं देख रही हूँ आपके लगातार कमेंट्स आ रहे हैं। फ़ारूक ख़ान साहब, कुर्बान आतिश साहब, इमरान ख़ान साहब और फैयाज़ अज़ीम साहब, आप तमाम ही लोग यहाँ पे, इम्तियाज़ अहमद दानिश साहब, मैं आप सबों का बेहद बेहद आपकी शुक्रगुजार हूँ। अजहर रसूल साहब, कि आप सब मुझे पसंद कर रहे हैं, सुन रहे हैं, मेरी शायरी सुन रहे हैं और मुझे
بہترین الفاظ سے یاد بھی کر رہے ہیں، اپنا خراج بھی دے رہے ہیں۔ ایک غزل ہے، میں حاضر کرتی ہوں آپ کے سامنے کہ کس کس طرح سے خود کو بھلا آزماؤں میں، کس طرح سے خود کو بھلا آزماؤں میں، اب آگ پہ چلوں کہ سفینہ جلاؤں میں، اب آگ پہ چلوں کہ سفینہ جلاؤں میں۔ اور شعر ہے کہ یوں تو غم حیات سے راحت نہیں مجھے، یوں تو غم حیات سے راحت نہیں مجھے، پھر بھی اسی متاع پہ قربان جاؤں میں، پھر بھی اسی متاع پہ قربان جاؤں میں۔ علی شاہد دلکش صاحب بہت شکریہ، عبدالوارث صاحب، آفتاب اختر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اور شعر دیکھیں کہ پھر بھی اسی متاع پہ قربان جاؤں میں۔ اور ایک شعر ہے کہ تم نے تو چارہ سازی میں کوئی کمی نہ کی، تم نے تو چارہ سازی میں کوئی کمی نہ کی، زخموں کے اس نمک کو بھلا کیا دکھاؤں میں، زخموں کے اس نمک کو بھلا کیا دکھاؤں میں۔ اور اس کی طرف توجہ دیں کہ کار جہاں دراز ہے عمر رواں ہے کم، کار جہاں دراز ہے عمر رواں ہے کم، دو دن کی اس حیات میں صدیاں بتاؤں میں، دو دن کی اس حیات میں صدیاں بتاؤں میں۔ اور یہ تو ہم سبوں کا تجربہ ہے کہ دیکھیں کہ گوندھوں کہیں پہ مٹی کہیں پکڑوں تتلیاں، گوندھوں کہیں پہ مٹی کہیں پکڑوں تتلیاں، بچپن ملے ادھار کہیں سے تو لاؤں میں۔ یہ ہم لوگوں کی ازلی خواہش ہے کہ گوندھوں کہیں پہ مٹی کہیں پکڑوں تتلیاں، بچپن ملے ادھار کہیں سے تو لاؤں میں۔ سونے سے روز و شب تھے وہ چاندی سی صبح و شام، سونے سے روز و شب تھے وہ چاندی سی صبح و شام، ماضی کے خاص دن تھے وہ کیسے چھپاؤں میں، ماضی کے خاص دن تھے وہ کیسے چھپاؤں میں۔ اور شعر دیکھیں کہ کانٹوں کی کیا بساط میری راہ روک لے، کانٹوں کی کیا بساط میری راہ روک لے، خنجر تلے بھی حق کی صدا ہی لگاؤں میں، خنجر تلے بھی حق کی صدا ہی لگاؤں میں۔ اور اس شعر پہ خصوصی توجہ چاہوں گی کہ میں نے سنا کہ پوچھ رہے تھے مجھے وہ کل، شعر دیکھیں کہ میں نے سنا کہ پوچھ رہے تھے مجھے وہ کل، اے زندگی خوشی سے کہیں مر نہ جاؤں میں، تضمین کا شعر ہے یہ، اے زندگی خوشی سے کہیں مر نہ جاؤں میں۔ اور مقطع ہے کہ خود کو مٹا کے زیست کو رنگیں ہے نہ کرے، خود کو مٹا کے زیست کو رنگیں ہے نہ کرے، ہمت کی یہ نظیر جہاں کو دکھاؤں میں، ہمت کی یہ نظیر جہاں کو دکھاؤں میں۔ اور غزلوں کا یہ سلسلہ تو یقیناً چلتا رہے گا۔ میں ذائقہ بدلنے کے لیے اب نظم کی طرف آتی ہوں، کچھ نظمیں بھی میری سماعت فرمائیں۔ حاضر کرتی ہوں، ایک نظم ہے حی القیوم۔ دیکھیں کہ خدائے برتر جھکے میرا سر تیرے ہی در پر، خدائے برتر جھکے میرا سر تیرے ہی در پر، یہ چرخ تیرا زمیں یہ تیری، تیرے ہی سورج یہ چاند سب ہیں، یہ کہکشاں اور گلستاں بھی تیرے اشارے پہ کھل کھلا کر بکھیرتے ہیں جہاں میں خوشیاں، یہ کہکشاں اور گلستاں بھی تیرے اشارے پہ کھل کھلا کر
बिखेरते हैं जहां में खुशियां, तोयूर रंगी हंसी सुरों में, फजा में हरदम समातों का हसीन पैकर तराशते हैं। फजा में हरदम समातों का हसीन पैकर तराशते हैं। पहाड़ भी मुंजमिद खड़े हैं, पहाड़ भी मुंजमिद खड़े हैं, मुहीब सूरत तेरे इशारे पे बुत की मानिंद। पहाड़ भी मुंजमिद खड़े हैं, मुहीब सूरत तेरे इशारे पे बुत की मानिंद। समंदरों की अथाह उसत में सीपियों के दिलों में मोती भी हैं, तेरे ही रहीने मिन्नत खुदाए बरतर। ये सारी दुनिया जिसे सजाई गई है इंसान के वास्ते ही, ये सारी दुनिया जिसे सजाई गई है इंसान के वास्ते ही, ये नस्ल आदम नहीं समझती, ये नस्ल आदम नहीं समझती, नहीं समझती भला ये आदम की नस्ल कैसे, ये किसके बल पर उजाड़ती है खुदा की दुनिया, ये किसके बल पर उजाड़ती है खुदा की दुनिया, ये किसके कहने पे बिन्ते हवा के इस्मतों को कुचल रही है, ये किसके कहने पे बिन्ते हवा की असमतों को कुचल रही है। खुदाए बरतर तेरे ही दर पर झुकी हुई है जबीन आदम, खुदाए बरतर तेरे ही दर पर झुकी हुई है जबीन आदम। जबीन हवा भी तेरे आगे ही सर निगू है, भटक गई फिर ये आदमी की नस्ल क्यों कर, ये किस तरह जानवर बनी है। खुदाए बरतर तो इस जहां के झुके सरों को कबूल करना, खुदाए बरतर तो इस जहां के झुके सरों को कबूल करना। जमी के ऊपर हंसी की चादर को तान देना, तू वहशियों को करार वाक़े सजाए देना। खुदाए बरतर तू अपनी अजमत इन्हें दिखा दे, खुदाए बरतर तू अपनी अजमत इन्हें दिखा दे। जो भूल बैठे तेरी हकीकत उन्हें बता दे, खुदा है जिंदा। जो भूल बैठे तेरी हकीकत उन्हें बता दे, खुदा है जिंदा। कि मौत उसको नहीं है आती, सदा रहा वो सदा रहेगा खुदाए बरतर। ये एक नज़्म थी। इसके बाद एक नज़्म जो मैंने अपने अब्बू के हवाले से लिखी है तो भी मैं आपके हवाले करना चाहूँगी कि वालिदैन का जो दखल होता है बच्चों की परवरिश में और किस तरह से वो कलम पकड़ाते हैं। मैं अपने अब्बू के लिए ये नज़्म आपके सामने हाजिर करती हूँ। छोटी सी नज़्म है। नज़्म का उन्वान है कलम। मुझे पहला कलम वो याद आता है, मुझे पहला कलम वो याद आता है, जिसे अब्बू ने सीधे हाथ की 2 उंगलियों में यूं फंसाया था। अब्बू ने सीधे हाथ की 2 उंगलियों में यूं फंसाया था कि जीते जी वो मुझसे तो कभी शायद जुदा होगा, कि जीते जी वो मुझसे तो कभी शायद जुदा होगा। मैं उस पहले कलम से रोज ही तकदीर लिखती हूँ, मैं उस पहले कलम से रोज ही तकदीर लिखती हूँ। मैं इन बेजान हरफों को बनाकर लफ्ज की सूरत, मैं इन बेजान हरफों को बनाकर लफ्ज की सूरत नया मफहूम लिखती हूँ, नई ताबीर लिखती हूँ। मैं इन हरफों के माथे पर, मैं इन हरफों के माथे पे नई। अहमद फराज को भी याद करेंगे इस मौके से कि सुना है शाह का फरमान फिर से आया है, सुना है शाह का फरमान फिर से आया है, सुना है आज भी गद्दार हम ही ठहरे हैं, सुना है शाह का फरमान फिर से आया है, सुना है आज भी गद्दार हम ही ठहरे हैं, हम ही रहे हैं मुहाफिज यहाँ के फूलों के, सुना है आज खताकार हम ही ठहरे हैं, सुना है कुफल भी डलवा दिए हैं होठों पर, सुना है
कुफ्ल भी डलवा दिए हैं होठों पर, सुना है हुक्म मिला है जबान बंदी का। सुना है कुफ्ल भी डलवा दिए हैं होठों पर, सुना है हुक्म मिला है जबान बंदी का। सुना है आंखों पे पहरे भी लग गए हैं अब, सुना है आंखों पे पहरे भी लग गए हैं अब। मगर जो चाहे कि सुन ले जनाबे मन की बात, खुशी से मौका उसे देंगे वो समात का। सुना है शाह की हाँ में जो हाँ मिलाएगा, सुना है शाह की हाँ में जो हाँ मिलाएगा, मिलेगा तोहफा उसे हर जगह सदारत का। जो सच को देख के आंखें करेगा अपनी बंद, सुना है दान वो देंगे उसे बसारत का। सुना है अंधों को अवार्ड मिलने वाले हैं, सुना है अंधों को अवार्ड मिलने वाले हैं। सुना है बहरों को तमगे लगाए जाएंगे, सुना है गूंगों की टोली बनाई जाएगी, हर एक मकाम पर उनको बिठाया जाएगा। सुना है उनसे गवाही दिलाई जाएगी, सियाह सफेद की दूरी मिटाई जाएगी। सुना है ये भी है मंसूबा शाह दौरा का, सुना है ये भी है मंसूबा शाह दौरा का। हर एक पेड़ को जड़ से उखाड़ फेंक, उनको ये पैगाम तो दे, मगर ए बादे सबा उनको ये पैगाम तो दे। जो हुर्रियत का नशा छा गया है महफिल में, उसी का जायका चखले वो उनको जाम तो दे। उन्हें बता दे बसारत से हम नहीं महरूम, उन्हें बता दे बसारत से हम नहीं महरूम। न हमने अपनी सरवा न खौफे दारो रसन, हमें तो जान से प्यारा है अपना प्यारा वतन। ये एहतजाज हमारा है शाह सुन लो तुम, ये एहतजाज हमारा है शाह सुन लो तुम। तुम्हारा हुक्म न मानेंगे शाह सुन लो तुम, जो जर खरीद तुम्हारे हैं वो रहेंगे चुप। तो मैं फिर वहीं से कंटिन्यू करती हूँ, वहीं से शुरू करती हूँ कि ये एहतजाज हमारा है शाह सुन लो तुम, तुम्हारा हुक्म न मानेंगे शाह सुन लो तुम। जो जर खरीद तुम्हारे हैं वो रहेंगे चुप, हमें कहेंगे शाह सुन लो तुम। हमें है जान से प्यारा हमारा ये दस्तूर, हमें है जान से प्यारा हमारा ये दस्तूर। तमाम जग से है न्यारा हमारा ये दस्तूर। ये एहतजाज हमारा है इसको दर्ज करो, ये एहतजाज हमारा है इसको दर्ज करो। बशक्ल नज्म ये नारा है इसको दर्ज करो। तो ये लग रहा है कि मेरी आवाज़ बार बार कट जा रही है, लेकिन हाज़रीन आप सब यहाँ मौजूद हैं, मुझे देख रहे हैं। फैयाज़ अजीम साहब, शराफत अंसारी साहब, बख्तियार नवाज साहब और परवेज़ मुजफ्फ़र साहब जो बर्मिंघम लंदन से हैं, और डॉक्टर मुजफ्फर हनफी साहब के साहबजादे हैं। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सब मतलब मुझे सुन रहे हैं। इम्तियाज़ साहब सही फरमा रहे हैं कि नेटवर्क परेशान कर रहा है, लेकिन हम लोग एक दूसरे के साथ बने हुए हैं। और आपके सामने फिर मैं अपनी एक और नज़्म हाजिर करती हूँ। देखिएगा, तानीसी नुक्ता निगाह से भी इस नज़्म की अहमियत होगी इंशाअल्लाह। देखिए आप इसे कि यादों की कंदील एक नज़्म है और एक नज़्म है नींद की गोली। पहले मैं यादों की कंदील हाजिर करती हूँ, सुने कि दिवाली की रात है ये, दिवाली की रात है ये और चिरागों का मौसम है चारों ओर। दिवाली की रात है ये और चिरागों का मौसम है चारों ओर। अफजल भाई आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दिवाली की रात है ये और चिरागों का मौसम है चारों ओर। पिछली दिवाली की यादें, पिछली दिवाली की यादें दिए जलाए जाती हैं क्यों पलकों पर। पिछली दिवाली की यादें दिए जलाए जाती हैं क्यों पलकों पर। क्या मैं उन रोशन पलकों से अब के बरस ख्वाबों को जलाऊं। क्या मैं उन रोशन पलकों से अब के बरस ख्वाबों को जलाऊं, या फिर सोचूं तुमने भी तो मजबूरी में, तुमने भी तो मजबूरी में अब के बरस की इस दूरी में यादों को रोशन रखा है।
तुम ने भी तो मजबूरी में अब के बरस की इस दूरी में यादों को रोशन रखा है। बस ये सोच के मैं रुक जाऊं, बस ये सोच के मैं रुक जाऊं, आने वाले अगले बरस तक यादों की किंदील जलाऊं, दिवाली हर शब को मनाऊं। बस ये सोच के मैं रुक जाऊं, आने वाले अगले बरस तक यादों की किंदील जलाऊं, दिवाली हर शब को मनाऊं। एक और नज्म है नींद की गोली। आप देखें कि फोन करके मुझे तुम जो कहते हो मुझसे कि मुझबिन, फोन करके मुझे तुम जो कहते हो मुझसे कि मुझबिन नींद आती नहीं है तुम्हें। ख्वाब पलकों के आंगन में सजते नहीं, मीठी सरगोशियां बात करती हैं जब, मीठी सरगोशियां बात करती हैं जब, नींद आती है तब। ऐसा होता है कब? मीठी सरगोशियां बात करती हैं जब, नींद आती है तब। ऐसा होता है कब? बस यही बात क्यों तब बताते नहीं, बस यही बात क्यों तब बताते नहीं, मुझको दिल की सदा क्यों सुनाते नहीं, मुझको दिल की सदा क्यों सुनाते नहीं। मेरे हाथों को हाथों में अपने लिए, मेरे हाथों को हाथों में अपने लिए, जबकि होता है 2 इंच का फासला, तुम बताते नहीं क्यों मुझे हाले दिल, तुम बताते नहीं क्यों मुझे हाले दिल। बंद आंखें तुम्हारी मैं देखा करूं, बंद आंखें तुम्हारी मैं देखा करूं, मैं ये सोचा करूं। बंद आंखें तुम्हारी मैं देखा करूं, मैं ये सोचा करूं। नींद की कोई गोली ही मैं तो नहीं, नींद की कोई गोली ही मैं तो नहीं, जिसको खाके तुम्हें नींद आती है हर रात गहरी बहुत। बहुत शुक्रिया। ये नज्म थी नींद की गोली। और अब जो है मैं फिर एक बार गज़ल की जानिब लौटती हूँ और एक गज़ल ही पेश करती हूँ। देखें कि मेरी आँखों में काजल ढूंढता है, मेरी आँखों में रौनक बेनज़ीर, बहुत शुक्रिया। मेरी स्टूडेंट हैं जावेद अली अहमद साहब, आपका बेहद शुक्रिया। इम्तियाज़ साहब, परवेज़ भाई, सबों का बेहद शुक्रिया। मतलब है कि मेरी आँखों में काजल ढूंढता है, मुझे वो हो के पागल ढूंढता है। मेरी आँखों में काजल ढूंढता है, मुझे वो हो के पागल ढूंढता है। हमेशा फेंक कर कंकर पे कंकर, हमेशा फेंक कर कंकर पे कंकर, समंदर में वो हलचल ढूंढता है, समंदर में वो हलचल ढूंढता है। अजहर रसूल साहब बेहद शुक्रिया। और परवेज़ साहब बहुत बहुत शुक्रिया परवेज़ भाई। शेर देखें कि समंदर में वो हलचल ढूंढता है और उसे चुभती है मेरी बेज़बानी, उसे चुभती है मेरी बेज़बानी। वो लड़की एक चंचल ढूंढता है, वो लड़की एक चंचल ढूंढता है। और शेर है कि उसी ने मुझको सेहरा की तपिश दी, उसी ने मुझको, शराफत साहब, वकार, इम्तियाज़ अहमद साहब, सबका बेहद शुक्रिया। उसी ने मुझको सेहरा की तपिश दी, वही फिर बन के बादल ढूंढता है, वही फिर बन के बादल ढूंढता है। और ये शेर देखें कि मेरे हाथों में वो परचम थमाकर, मेरे हाथों में, बहुत शुक्रिया अजहर रसूल साहब, अरमान रियाज साहब, बहुत शुक्रिया। मेरे हाथों में
वो परचम मेरे हाथों में परचम को थमा कर मेरे माथे पे आंचल ढूंढता है, मेरे माथे पे आंचल ढूंढता है। और अब मेरे ख्याल से थोड़ा सा वक्त बचा है, मैं एक गज़ल से बस अपनी बात ख़त्म करूंगी कि ज़ख्म ताज़ा हुआ दोबारा क्या, ज़ख्म ताज़ा हुआ दोबारा क्या, उसकी आँखों में था इशारा क्या, उसकी आँखों में था इशारा क्या। खुर्शीद इकबाल साहब, अरमान रियाज साहब, शराफत साहब, बहुत शुक्रिया। उसकी आँखों में था इशारा क्या, कितनी खामोश उसकी आँखें हैं, कितनी खामोश उसकी आँखें हैं, बुझ गया है कोई शरारा क्या, बुझ गया है कोई शरारा क्या। ख्वाब पलकों पे बोझ लगते हैं, ख्वाब पलकों पे बोझ लगते हैं, करना उनको है पारा पारा क्या। जीत कर हारना मेरी किस्मत, जीत कर हारना मेरी किस्मत, ऐसे सौदे में है खसारा क्या, ऐसे सौदे में है खसारा क्या। तुम कहो लौट कर कहाँ जाऊं, तुम कहो लौट कर कहाँ जाऊं, मेरी किस्मत में है किनारा क्या, मेरी किस्मत में है किनारा क्या। अजीम अंसारी, खुर्शीद इकबाल साहब, इम्तियाज साहब, सबका बेहद शुक्रिया। और एक शेर देखें कि गज़ल का आखिरी शेर देखें कि क्यों मचाते हो रोज़ हंगामा, क्यों मचाते हो रोज़ हंगामा, शहरे दिल ने तुम्हें पुकारा क्या, शहरे दिल ने तुम्हें पुकारा क्या। और मक्ता हाजिर है कि क्यों शेर देखें कि क्यों हिना के करीब आते हो, क्यों हिना के करीब आते हो, तुमको मरना है अब दोबारा क्या, तुमको मरना है अब दोबारा क्या। और एक छोटी सी गज़ल के चंद अशार सुन लें कि किसी को राहज़न लिखा, किसी को रहनुमा लिखा, किसी को राहज़न लिखा, किसी को रहनुमा लिखा, कलम ने मेरे जब लिखा, खरे को बस खरा लिखा। ये हम सब क्या ये सेवा रहना चाहिए कि हम लोग खरे को खरा लिखें और बिकने ना दें अपने कलम को, कि कलम ने मेरे जब लिखा, खरे को बस खरा लिखा। और इस शेर पे खुसूसी तवज्जो चाहूँगी कि हमारी खामोशी तो मसलहत थी अमन की खातिर, हमारी खामोशी तो मसलहत थी अमन की खातिर, हमारी मसलहत को शाह ने जुर्मे वफा लिखा, हमारी मसलहत को शाह ने जुर्मे वफा लिखा। और ये शेर देखें गज़ल का शेर के हमारे दिल की ख्वाहिश रह गई दिल में ही पोशीदा, हमारे दिल की ख्वाहिश रह गई दिल ही में पोशीदा, न उसने मुद्दा पूछा न हमने मुद्दा लिखा, न उसने मुद्दा पूछा न हमने मुद्दा लिखा। और मेरे ख्याल से अब वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, ये शायद ख़त्म होने को है। इम्तियाज़ साहब, मैं अब क्या रुक जाऊं या फिर आगे बढ़ूं? जब तक वो जवाब देते हैं तब तक मैं आगे बढ़ती हूँ कि उनके जुमलों में, गज़ल देखिए, गज़ल का मतलब पेश खिदमत है कि उनके जुमलों में सच वाकई ढूंढना, उनके जुमलों में सच वाकई ढूंढना, तपते सहरा में जैसे नमी ढूंढना, तपते सहरा में जैसे नमी ढूंढना। और शेर है कि आज भी तुमने बदली नहीं अपनी खू, आज भी तुमने बदली नहीं अपनी खू, रूठ जाना मेरी बेबसी ढूंढना, रूठ जाना मेरी बेबसी ढूंढना। और नफसी नफसी का आलम है हर पल यहाँ, नफसी नफसी का आलम है हर पल यहाँ,
कितना मुश्किल है लब पर हंसी ढूंढना, कितना मुश्किल है लब पर हंसी ढूंढना। आफ्ताब साहब, इम्तियाज़ साहब, सैफुल साहब, सैफुल इस्लाम साहब, शराफत अंसारी साहब, आप सबका बेहद शुक्रिया। कितना मुश्किल है लब पे हंसी ढूंढना। और इस शेर को पर तवज्जो चाहूँगी। तज़मीन का शेर है कि दिल लगी को न दिल से लगा के कभी, दिल लगी को न दिल से लगा के कभी, मेरे इखलाक में तुम कमी ढूंढना, मेरे इखलाक में तुम कमी ढूंढना। और शेर देखें कि उनकी बातों में क्या अपनेपन की तलाश। बुलंद इकबाल साहब, आफ्ताब अख्तर साहब, आप सबका बेहद शुक्रिया। उनकी बातों में क्या अपनेपन की तलाश, धूप में जैसे रुत शबनमी ढूंढना, धूप में जैसे रुत शबनमी ढूंढना। आफ्ताब अख्तर साहब, मैं कलाम हाजिर कर रही हूँ, आप सुनते रहें जब तक वक्त है। बहुत शुक्रिया। और गज़ल का मक्ता हाजिर खिदमत है कि ऐ हिना तुझको मुश्किल में डालेगा ये, ऐ हिना तुझको मुश्किल में डालेगा ये, हर जगह हर घड़ी आग ही ढूंढना, हर जगह हर घड़ी आग ही ढूंढना। और एक और शेर है कि एक और गज़ल के चंद अशार सुनते चलें कि तेरी दुनिया से दिल ये भरा ही नहीं, तेरी दुनिया से। शुक्रिया इम्तियाज़ साहब, बेहद शुक्रिया। मैं रख रही हूँ, जारी हूँ मैं कि तेरी दुनिया से दिल ये भरा ही नहीं, मेरा चाहा हुआ तो हुआ ही नहीं, तेरी दुनिया से दिल ये भरा ही नहीं, मेरा चाहा हुआ तो हुआ ही नहीं। और उसने मतलब है कि ये तज़मीन का शेर भी है, उसने मतलब भी है कि जिंदगी से बड़ी तो सज़ा ही नहीं, जिंदगी से बड़ी तो सज़ा ही नहीं, भागने का कोई रास्ता ही नहीं, भागने का कोई रास्ता ही नहीं। और शेर देखें कि मैं तेरे वास्ते जान निछावर करूं। शराफत साहब बेहद शुक्रिया। मुख्तार अहमद हुसैनी साहब बेहद शुक्रिया। अली शाहिद दिलकश साहब, सैफुल इस्लाम साहब बेहद शुक्रिया। मैं तेरे वास्ते जान निछावर करूं, इससे बेहतर तो कोई दुआ ही नहीं, इससे बेहतर तो कोई दुआ ही नहीं। हम सफ़र मेरा क्यों इतना बेचैन है, गौर करें इस पर। हम सफ़र मेरा क्यों इतना बेचैन है, ऐब उसका तो मुझ पर खुला ही नहीं, ऐब उसका तो मुझ पर खुला ही नहीं। और फिर बचपन की तरफ लौटती हूँ कि मेरा बचपन न जाने कहाँ खो गया। बेहद शुक्रिया अजीम साहब और अरमान रियाज साहब, बेहद शुक्रिया। अली शाहिद दिलकश साहब, मेरा बचपन न जाने कहाँ खो गया, वो तो बरसों से मुझसे मिला ही नहीं, वो तो बरसों से मुझसे मिला ही नहीं। और शेर देखें कि साल बीते कि सदियां हुई मुझ में गुम, साल बीते कि सदियां हुई मुझ में गुम, जख्म दिल का तो मेरे भरा ही नहीं, जख्म दिल का तो मेरे भरा ही नहीं। और एक और आखिरी शेर है गज़ल का कि छीन ले मेरी आँखों से चेहरा तेरा, छीन ले मेरी आँखों से चेहरा तेरा, जाने मन ऐसा दस्ते कज़ा ही नहीं, जाने मन ऐसा दस्ते कज़ा ही नहीं। बहुत शुक्रिया आपका, आप सबों का। शराफत साहब, बुलंद इकबाल साहब, आप सबों का। अली शाहिद दिलकश साहब, बहुत शुक्रिया। मैं मक्ता हाजिर करती हूँ, सुनते रहें कि क्यों रगड़ते हो तुम हाथ को यूं मियाँ। मक्ता पे गौर करें कि क्यों रगड़ते हो तुम हाथ को यूं मियाँ, छूट जाए वो रंगे हिना ही नहीं, छूट जाए वो रंगे हिना ही नहीं, तेरी दुनिया से दिल ये भरा ही नहीं, मेरा चाहा हुआ तो हुआ ही नहीं। मेरे ख्याल से अब वक्त हो गया है, या अगर इजाज़त हो तो और भी सुना सकती हूँ, लेकिन इम्तियाज़ साहब ने जो 40 मिनट का वक्त दिया था वो 40 मिनट अब ख़त्म हो गए हैं। तो मैं क्या अब पूरा समेट लूँ या फिर आगे जारी रखूँ, जैसा आप सब कहें नाजरीन।
اور خاص طور سے امتیاز احمد دانش صاحب جو کہ ایڈمن ہیں، جو کہ میزبان ہیں ہمارے، میں ان کی بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس محفل میں مجھے بلایا، مجھے اور آپ سبوں نے مجھے برداشت کیا، مجھے گوارا کیا، آپ سب کا بے حد شکریہ۔ اور اگر وقت ہوگا تو میں آگے پڑھوں گی، ورنہ میں یہیں سے اپنی باتیں ختم کرنا چاہوں گی، اور چند اشعار جاتے جاتے میں آپ کو سنا دینا چاہتی ہوں۔ جب تک وہ جواب دے رہے ہیں امتیاز صاحب، تب تک میں کچھ اشعار اور بھی آپ کی حاضر خدمت کر رہی ہوں کہ جو آدم نے کی وہ خطا کر رہے ہیں، جو آدم نے کی وہ خطا کر رہے ہیں، محبت کا حق ہم ادا کر رہے ہیں۔ جو آدم نے کی وہ خطا کر رہے ہیں، محبت کا حق ہم ادا کر رہے ہیں۔ خدایا مجھے تو صلہ اس کا دینا، خدایا مجھے تو صلہ اس کا دینا، کہ محبوب سے ہم وفا کر رہے ہیں۔ خالص غزل کے اشعار ہیں ناظرین، دیکھیے کہ خدایا مجھے تو صلہ اس کا دینا، کہ محبوب سے ہم وفا کر رہے ہیں۔ اور اس شعر پہ توجہ چاہوں گی کہ مچلنا مچل کر وہ فریاد کرنا، مچلنا مچل کر وہ فریاد کرنا، ہم آدم کی سنت ادا کر رہے ہیں، ہم آدم کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ اور تجھے اپنی حد میں ہمیں دیکھنا ہے، تجھے اپنی حد میں ہمیں دیکھنا ہے، تیرے حق میں ہم بس دعا کر رہے ہیں، تیرے حق میں ہم بس دعا کر رہے ہیں۔ اور شعر ہے کہ جنہوں نے ستم کی کوئی حد نہ چھوڑی۔ شکریہ شرافت صاحب اور امتیاز صاحب، آفتاب صاحب، قربان صاحب، میں حاضر کر ہی رہی ہوں، میں نے جاری رکھا ہے۔ دیکھیں کہ جنہوں نے ستم کی کوئی حد نہ چھوڑی، وہی میرے حق میں دعا کر رہے ہیں، وہی میرے حق میں دعا کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی تضمین ہے کہ سبق مہر و الفت کا دے کر جہاں میں، سبق مہر و الفت کا دے کر جہاں میں، حق زندگی ہم ادا کر رہے ہیں، حق زندگی ہم ادا کر رہے ہیں۔ اور مقطع دیکھیں اور غور کریں کہ ہے نہ ہے کہاں اتنی فرصت کے سوچیں، ہے نہ ہے کہاں اتنی فرصت کے سوچیں، بھلا کر رہے یا برا کر رہے ہیں، بھلا کر رہے یا برا کر رہے ہیں۔ جو آدم نے کی وہ خطا کر رہے ہیں، محبت کا حق ہم ادا کر رہے ہیں۔ یہاں پہ ایک شعر میں نے تھوڑا سا غلط پڑھ دیا تھا کہ جنہوں نے ستم کی کوئی حد نہ چھوڑی، نہیں یہ تو ٹھیک ہے، بہرحال ہے نہ ہے کہاں اتنی فرصت کے سوچیں، بھلا کر رہے یا برا کر رہے ہیں، بھلا کر رہے یا برا کر رہے ہیں۔ اور ایک غزل ہے، دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگ سننے کے موڈ میں ہیں، تو ایک اور غزل میں پیش خدمت کرتی ہوں کہ مسلک عشق اختیار نہ کر، مسلک عشق اختیار نہ کر، اس کے آنے کا انتظار نہ کر، اس کے آنے کا انتظار نہ کر، کون کہتا ہے وہ ملے گا یہاں، کون کہتا ہے وہ ملے گا یہاں، راہ چلتوں پہ اعتبار نہ کر، راہ چلتوں پہ اعتبار نہ کر۔ اظہر عارف صاحب بے حد شکریہ، عبدالرشید صاحب، پرویز مظفر بھائی بے حد شکریہ، آپ لندن سے بنے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ کون کہتا ہے وہ ملے گا یہاں، راہ چلتوں پہ اعتبار نہ کر۔ اور شعر دیکھیں کہ ٹوٹتے ہیں تو ٹوٹ جانے دے، ٹوٹتے ہیں تو ٹوٹ جانے دے، پاؤں کے آبلے شمار نہ کر، پاؤں کے آبلے شمار نہ کر۔ اور شعر دیکھیں کہ ایک سچ ہی تو کہہ دیا اس نے، مختار احمد حسینی صاحب بھی ہیں ماشاءاللہ، آفتاب اختر صاحب ہیں، بے حد شکریہ آپ حضرات کا۔ ایک سچ ہی تو کہہ دیا اس نے، چھوڑ دے اس کو سنگسار نہ کر، چھوڑ دے اس کو سنگسار نہ کر۔ اور
ख्वाब छीना है जिसने आँखों से, ख्वाब छीना है जिसने आँखों से, जाग जा उस पे एतबार न कर, जाग जा उस पे एतबार न कर। और एक शेर है कि अपनी नोके कलम की जुम्बिश से, अपनी नोके कलम की जुम्बिश से, मुनसिफी को तू शर्मसार न कर, मुनसिफी को तू शर्मसार न कर। जिसका जो मर्तबा है उसको दे, जिसका जो मर्तबा है उसको दे। खाके पा को तू शहरयार न कर, खाके पा को तू शहरयार न कर। और आखिरी शेर है कि हुक्मरानी जिन्हें नहीं आती, हुक्मरानी जिन्हें नहीं आती, ऐसे वैसों को ताजदार न कर, ऐसे वैसों को ताजदार न कर। मसलके इश्क इख्तियार न कर, उसके आने का इंतज़ार न कर। कौन कहता है वो मिलेगा यहाँ, राह चलतों पे एतबार न कर। बेहद शुक्रिया आप हजरात का। और मुझे लगता है कि अब मुझे रुकना चाहिए क्योंकि आप लोगों ने बहुत साथ दिया, लेकिन इम्तियाज़ साहब शायद उनकी कुछ दूसरे मसाइल भी उनके साथ होंगे इस प्रोग्राम के हवाले से कि मुकर्ररा वक्त से अगर बाहर चला जाए तो कोई मामला भी हो सकता है। तो सबसे खुशी की बात यह है कि आप लोग इतनी मतलब कि क्या कहें तुंदही के साथ सुन रहे हैं, इतनी खूबसूरती से सुन रहे हैं, आपके कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और इम्तियाज़ साहब ने जो ये महफ़िल सजाई है, मैं उन्हें फिर से मुबारकबाद देती हूँ कि इस तरह की महफ़िल में उन्होंने मुझे मदऊ किया, मुझे बुलाया, मुझे अपनी बातें रखने का, अपने अशार सुनाने का, अपनी गज़लें, अपनी नज़में सुनाने का मौका दिया। और आप लोगों ने मुझे बर्दाश्त किया, मुझे गवारा किया, इसके लिए बेहद बेहद शुक्रिया। और इसके साथ ही मैं आप लोगों से मैं इजाज़त चाहूँगी कि भाई वक्त भी हो रहा है और 10 बज गया, मेरी घड़ी में तो 10 बज रहा है, 9 से 10 हो गया। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे आप लोगों को और ज़्यादा ज़हमत देनी चाहिए। हालांकि आपकी मोहब्बतें मुझे लगातार मिल रही हैं, फिर भी आप सब का एक बार बेहद शुक्रिया अदा करते हुए, और हमारे जो तज़ीन अदब आरा बिहार के जो इम्तियाज़ साहब है, उनकी जो टीम है, और उनके जो सामीन और नाजरीन जो उनसे जुड़े हुए हैं, उन सब की मोहब्बतें भी उनके लिए हैं। और हम सब की दुआएं हैं कि तज़ीन अदब आरा इसी तरह से अपना उर्दू अदब की खिदमत में लगा रहे, और ये जो तंजीम है इसी तरह से दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करती रहे। और हम सब की दुआएं आपके साथ हैं। इंशाअल्लाह ताला फिर आपसे अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, साबिरा हैना को इजाज़त दीजिए, दुआओं से नवाजते रहिए। आप सबका बेहद शुक्रिया। आप सब सेहत के साथ सलामत रहें, बने रहें। अल्लाह हाफिज़।